कोई बड़ी बात नहीं है, इन लोगों को हर दूसरे दिन नया लव मिल जाता है। She is doing all of this to make headlines. Nothing else. अभी इन हर शो से है She is playing an integral role and is getting attention. वो सोच रही होगी और थोड़ा TRP बढ़ जाए तो मजा आ जाए. The divorce rumors have been going on since very long. Probably she fell in love back when nothing was confirmed. They have been living away for a few years now. Maybe they realized that their issues can't be resolved and drifted away. Started exploring and dating. Though it's kind of surprising to me personally, seeing people move on so easily after so many years of marriage. Still good for them. They deserve peace and happiness. How are people finding love so soon after their breakup or divorce? It took me 5 years to find the one after my breakup. Even if they separated a year ago or so, can you just forget a relationship of more than 10 years with whom you have babies? So hello guys, welcome to बोलचीनी एंड कल माही विजय एक स्टोरी पोस्ट करती हैं holding hands with an unknown person. Now because इस चीज का कॉन्टेक्स्ट किसी को भी नहीं पता था, everybody started speculating कि ये पर्सन कौन हो सकता है. कईयों का कहना था कि there's a high chance कि ये पर्सन जय ही है, क्योंकि even after announcing divorce माही ने जय के साथ स्टोरी डाली थी. बट अभी जस्ट कुछ टाइम पहले माही विजय पोस्ट शेयर करती है जिसमें वो क्लियरली नादिम नाज के साथ अपना रिलेशन ऑफिशियली कंफर्म करती है. मैं ये पोस्ट आपको पढ़ के सुनाती हूँ. हैप्पी बर्थडे टू द वन आई चोज, नॉट बाय चांस बट बाय हार्ट. To the one who listens to me even if I don't say a word. To the one who stands by me not because he has to, but because he wants to. You're my family, my safe place, my forever. You're not just my best friend, you are my comfort. With you I can be myself, broken, happy, emotional, imperfect, and still feel completely accepted and loved. Yes, we get angry sometimes. Yes, we fight. Yes, sometimes we don't talk for days. But no matter how far the silence goes, it always ends at the same place. Us. Because deep down, we both know that Nadim and Mahi are one. Our souls connected in a way words can never fully explain. Life hasn't always been easy, but having you by my side makes everything lighter, everything stronger, everything better. You hold my hand when I'm weak. You believe in me when I forgot to believe in myself. And you love me in ways that heal the parts of me that I didn't even know were broken. I love you, Nadim, not just for who you are, but for how you make me feel, for how you are my heart, my home, my family, today and always. And if you're wondering कि who is Nadeem, तो he is the CEO of SK Films, जो कि सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस है. एक पोस्ट में सलमान खान उन्हें बर्थडे विश करते हुए एक पोस्ट करते हैं एज हिज क्लोजेस्ट एंड लॉन्गेस्ट फ्रेंड. नॉट ओनली दिस बट जय एंड माही की डॉटर तारा के साथ भी नादिम का एक पोस्ट करा जाता है. माही रेफर्स टू हिम एज तारा's अब्बा. When I see you and Tara together, I see my life, I see my love. There's a beautiful ease in the way she calls you Abba, as if her little heart always knew where it felt safe, even when distance comes in between. Watching you with her fills me with nothing but warmth and gratitude. Some bonds are chosen by love and not blood, and the bond you share with her is one of the most precious gift life has given us. Blessed to have a best friend who can become so much more her Abba ऑलवेज. ना ये रिवीलिएशन शॉकिंग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इवन द डाइवोर्स के रूमर्स काफी टाइम से चले आ रहे हैं. जस्ट कुछ टाइम पहले जय एंड माही की तरफ से डाइवोर्स पब्लिक किया गया है एंड इस पे माही एंड जय को काफी बैकलैश भी मिला था. एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि आजकल तो इंडस्ट्री में डाइवोर्स काफी कॉमन चीज है, तो फिर इस बात पर बैकलैश कैसा? तो असल में हुआ ये था कि अक्टूबर में जब इनके डाइवोर्स के बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे थे तब माही का इस पर काफी एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिला था. जब एक मीडिया पेज ने ये रूमर के बारे में एक पोस्ट किया था तो उसमें माही ने ये कॉमेंट किया था कि वो इस पेज पर लीगल एक्शन लेंगी फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन. एंड अपने यूट्यूब चैनल पर भी आकर ये सब बातें उन्होंने क्लियर करी थी. तो उस टाइम पे माही काफी कन्विंसिंग साउंड कर रही थी एंड उनकी बातें सुनकर एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि मीडिया हाउसेस अननेसेसरीली फॉल्स नैरेटिव्स फैला रहे हैं. बट जब एक्चुअल कंफर्मेशन इस डाइवोर्स का आता है तो ये क्लियर हो जाता है जो रूमर स्प्रेड हो रहे थे वो बेसलेस तो नहीं थे. एंड जब 2 महीने पहले आपका इतना फर्म स्टैंड देखने को मिला था तो ऐसा क्या हो गया इस छोटे से फ्रेम में कि आफ्टर 2 मंथ्स डाइवोर्स अनाउंस करना पड़ गया. सो द एक्चुअल ट्रूथ इज इनका सेपरेशन अभी नहीं काफी टाइम पहले से हो रखा है. एंड मैं ये चीज ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ. ये पोस्ट आप देखो, ये लास्ट ईयर का है. इस पोस्ट में माही सीन हगिंग नादिम एंड पोस्ट के कैप्शन में लिखा है हैप्पी बर्थडे माय लाइफ. उस टाइम पर इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया गया एंड कैजुअली ब्रश ऑफ कर दिया जाता है. Salman Khan's friend. Back when Salman Khan was producing the Kapil Sharma show, this person was handling the production for Salman Khan. That's what Salman said when both of them visited Kapil's show as a guest. जय ने भी लाइक किया है इस पोस्ट को. इन लोगों के लिए awkwardness कोई चीज होती भी है या नहीं? जय and Mahi have been separated for a while and I guess the divorce was finalized recently. You can tell from her vlogs and social media that they were only co-parenting. वैसे भी Jay was getting photographed with his new girlfriend and getting trashed for it. And there were those blinds about him cheating and all. Mahi and her new boyfriend probably don't want to deal with the same treatment. So she first announced the divorce and then made the vlog explaining it and now announced her relationship. सब sequence में किया unlike Jay to avoid any public shaming. Jay and Mahi basically fell out of love. He went for young girls and she went for this person. That's why she keeps defending Jay. Jay and Mahi दोनों एक ही थाली के बैंगन हैं. No wonder they keep defending each other. It's sad that without knowing the whole truth everyone was blaming Jay. Let's remember it takes two to tango.
अगो नॉट टू बी दैट पर्सन, बट इनका फॉरएवर एंड ऑलवेज का मतलब वो नहीं होता जो नॉर्मली हमारा होता है। डाइवोर्स अनाउंस करने पर जय को ऑडियंस का काफी एक्सट्रीम बैकलैश फेस करना पड़ा था। इसके पीछे कई रीजंस थे। पास्ट में भी काफी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर जय का देखने को मिला है, जहाँ पर वो यंग लड़कियों पर रशियन जोक्स क्रैक करते हुए कॉल आउट किया गया एंड इस रीजन के कारण एक मिसोजिनिस्टिक इमेज भी उसकी बन चुकी है। एक इंटरव्यू में जय मेंशन करते कि किस तरह से माही को उन्होंने ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए स्टैंड बाय पर रखा था जस्ट टू सैटिस्फाई हिज ईगो। बेसिकली काफी इमेच्योर वे से वो इधर एक्ट कर रहा था। बट जो मेजर रीजन है इस क्रिटिसिज्म का वो है चीटिंग रूमर्स। कोविड के बाद से ही जय को लेकर काफी सारे चीटिंग रूमर्स आने शुरू हो गए थे एंड अभी कुछ टाइम पहले सौम्या खन्ना नाम के एक 19-year-old इन्फ्लुएंसर ने ये क्लेम किया था दैट एन एक्टर ट्राइड टू ल्योर हर टू हिज अपार्टमेंट एंड दो किसी का भी नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, सौम्या का डिस्क्रिप्शन सुनकर एवरीबॉडी स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग अबाउट हु दिस पर्सन मस्ट बी एंड अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल बिलीव्ड कि यहाँ पर जय के बारे में बात हो रही है। आई हैव कवर्ड दिस सिचुएशन इन अ प्रीवियस वीडियो टू, सो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो टू नो द एंटायर सिचुएशन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, करेंटली ऐसे क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं दैट ही इज करंटली डेटिंग अ गर्ल हु इज allegedly 20 years younger to him. Now if you ask me here, अगर ये सब स्पेकुलेशंस ट्रू है तो ये बिहेवियर एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक है। अर्ली 20s में आपकी मैच्योरिटी इतनी नहीं होती है एंड इसी रीजन से एट टाइम लोग इस एज में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो वो आगे जाकर रिग्रेट करें एंड इस सिचुएशन में जय इज द एडल्ट। रिलेशनशिप के डायनामिक्स ऐसे हैं दैट ह्यूज एज गैप एंड डिफरेंस इन पावर होने के कारण रिलेशनशिप की मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जय के ऊपर है। इस केस में अगर ये सभी रूमर्स ट्रू है तो भले ही आप यहाँ पर उस लड़की को ब्लेम करो ये बोलकर दैट शी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बीट इन द मॉनिटरी एस्पेक्ट या फिर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अल्टीमेटली अकाउंटेबल यहाँ पर जय ही है। तो अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि माही बिल्कुल इनोसेंट है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इक्वली इफ नॉट मोर प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर यहाँ पर माही की तरफ से भी देखने को मिला है। बिग बॉस 13 के टाइम पर शी यूज्ड टू अब्यूज पीपल ऑन ट्विटर। अगर वो सिद्धार्थ को छोड़कर रश्मि या आसिम को सपोर्ट करा करते, पब्लिकली माँ बहन की गालियां वो लोगों पर थ्रो करा करती एंड ये अगली लैंग्वेज का यूज अभी तक भी नहीं रुका है। अ कपल ऑफ डेज अगो ये स्टोरी माही की तरफ से देखने को मिलती है। वैशी राइट्स, चलो लोगों के से निकाल के कुछ तो मिल रहा है मीडिया को पोस्ट करने के लिए, कितने बुरे हाल है लोगों के तक के वीडियो डाल देते हैं। So, यहाँ पर इट इज अंडरस्टूड कि शी इज कॉलिंग आउट द मीडिया फॉर जो भी ऊप्स मोमेंट वो कैप्चर करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि टाइम एंड अगेन भी पैप्स का एक क्रीपी बिहेवियर देखने को मिला है जहाँ पर एक्ट्रेसेस के मना करने पर भी उनके बैक साइड को जूम कर करके दिखाएंगे। बट द प्रॉब्लम हियर इज द लैंग्वेज। किसी भी चीज को अगर प्रॉपर्ली फ्रेम करके बोला जाए तो लोग आपके वर्ड्स को वैल्यू भी करते हैं एंड दे सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। बट जब आपकी लैंग्वेज इतनी इनअप्रोप्रिएट होती है या अब्यूजिव होती है तो लोगों का फोकस एक्चुअल मोटिव्स से शिफ्ट होकर आपकी टोन ऑफ स्पीच पर चला जाता है, व्हिच डिफाइंस द एंटायर पर्पस ऑफ योर स्टैंड। एक और चीज जो यहाँ पर वियर्ड फील होती है दैट इज कि आफ्टर अनाउंसिंग द डाइवोर्स अपने चैनल पर माही एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डालती है। उसमें कहीं ना कहीं उनका ये कहना रहता है दैट पीपल शुड नॉट बी कमेंटिंग ऑन द डाइवोर्स। सो इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। जस्ट बिकॉज एक पर्सन एक्टर है एंड पब्लिक आई में है डजंट मीन कि दे ओ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट लाइफ टू द पब्लिक। अगर आपका भी यही स्टांस है देन अपनी वही पर्सनल लाइफ पर व्लॉगिंग के थ्रू आप क्यों मोनेटाइज कर रहे हो? थिंग्स लाइक व्लॉगिंग एंड पर्सनल स्पेस डोंट गो हैंड इन हैंड। एंड फिर यहाँ तो जय का, देन माही का एंड इवन उनकी बेटी तारा का, तीनों के सेपरेट चैनल्स है, ऑल हैविंग गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो ऑडियंस अब आपकी लाइफ में एंग्रोस्ड हो चुकी है। सो इवन दो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने प्राइवेट मैटर्स को ऑनलाइन डिस्कस करना, बट बिकॉज आप अपनी लाइफ को एज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कर चुके हो, ऑडियंस नेचुरली वांट्स टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। सो माहीज बिहेवियर कम्स अक्रॉस एज हिपोक्रिटिकल इन दिस सिचुएशन। अगर जो इतना ही अच्छा है तो अलग क्यों हो गए? 14 साल की शादी फिर डाइवोर्स, ऊपर से बोल रही है कि हमारे बीच सब ठीक है। बच्चे माँ बाप का डाइवोर्स देख रहे हैं और ये बोल रही है बच्चे पीसफुल रहेंगे। ना प्यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग है फिर भी डाइवोर्स। इस प्यार को क्या नाम दूं? तो ये ऑडियंस का कहना है, बट देखा जाए तो माही एंड जय दोनों भी अभी एक काफी कॉर्डियल रिलेशनशिप में है। दे आर को पेरेंटिंग देयर डॉटर। नादिम को लेकर भी इस रिलेशनशिप में कोई अनकंफर्टेबल फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि जो इनकी डॉटर तारा का इंस्टाग्राम पेज है उसकी प्रोफाइल पिक में सीन होल्डिंग हर इन हिज लैप एंड नादिम के बर्थडे बैश में भी जय प्रेजेंट था एंड ये स्टोरी उसने वहां से शेयर करी थी कॉलिंग नादिम हिज ब्रदर। एनीवेज सो दिस वाज द एंटायर सिचुएशन। आपका क्या टेक है इस सब पर? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें एज आई एम ट्राइंग टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।